How are you all? I hope you all are fine and having good time with your family. Today we are going to start our Unit 3. आज हम start करने वाले हैं Unit 3 मोहन and his वीणा. Now first हम कुछ hard words देख लेते हैं कि hard words किस तरीके के हैं. Experiment it means प्रयोग. Experiment એટલે પ્રયોગ. આપણે સાયન્સમાં એક્સપેરિમેન્ટ હોય ને એને જ પ્રયોગ. ટુ ડિક્લેર જાહેર કરવું. તમારું રિઝલ્ટ ડિક્લેર થઈ ગયું છે એટલે જાહેર થઈ ગયું છે. ઓવરજોયડ ખૂબ આનંદમાં, એમ ખૂબ ઉત્સાહમાં આવી જવું, એમ આનંદમાં આવી જવું. ગેધરિંગ સભા. ગેધરિંગ એટલે સભા. કઈ ગેધરિંગ હોય ને તમારે ઘર ગેટ ટુગેધર નું ફંક્શન હોય એટલે બધે બધા આવી જાય એને ગેધરિંગ કહેવાય કે અમે અહીંયા શું મૂક્યું છે, ગેધરિંગ મૂકી છે. એપ્રિસિએશન એટલે વખાણ. કોઈ પણ વાતનું વખાણ કરે ને આપણે, બહુ મસ્ત કામ કરી એટલે પછી આપણને એપ્રિસિએશન મળે. તમે ફર્સ્ટ રેન્ક આવો, સેકન્ડ રેન્ક આવો ને કંઈક સારું કામ કરો તો તમને એપ્રિસિએશન મળે એટલે વખાણ. પરફોર્મન્સ જાહેર પ્રદર્શન. આપણે સ્ટેજ ઉપર પરફોર્મન્સ કરીએ છીએ ને એટલે એ પરફોર્મન્સ જાહેર પ્રદર્શન. કોમ્પિટિશન હરીફાઈ એટલે સ્પર્ધા. કોમ્પિટિશન હોય ને આપણે સ્કૂલમાં ઘણા બધા કોમ્પિટિશન હોય છે એને હરીફાઈ. ડિટરમાઇન કૃત નિશ્ચય એટલે કોઈ પણ દૃઢ નિશ્ચય કરી લેવી એને શું કહેવાય, કૃત નિશ્ચય એટલે ડિટરમાઇન કહેવાય. સ્પેશિયાલિટી એટલે વિશેષતા, એમની વિશેષતા છે, સ્પેશિયાલિટી છે એમની. અનટાયરિંગ એટલે અથાક, ખોલી દેવું ને કઈક વસ્તુને ખોલી નાખવાનું એને અનટાયરિંગ. પેશન એટલે ઉત્કટ ભાવના. કોઈ પણ વસ્તુ કરવાની પેશન હોવી જોઈએ. ભણવાનું આપણને પેશન હોવું જોઈએ. પેશન એટલે આપણને એક કહેવાનું હોય કે આપણને જે પણ કામ કરવું એ ડિટર્મિનેશન થી કરવું છે, પેશન થી કરવું છે. સેરેમની એટલે વિધિ. સેરેમની એટલે કઈ પણ વિધિ હોય ને એને સેરેમની કહેવાય. તો આ બધા આપણા શું હતા, આ બધા આપણા હાર્ડવર્ડ્સ હતા. હવે આપણે ચેપ્ટરમાં જોઈશું કે મોહન અને એની વીણામાં શું બતાવવા માંગે છે એ લોકો. Mohan was born in a family of musicians. Music was in his blood. He grew up with musicians like his father and other family members. He was initially trained in vocal music and then he tried his hand at the violin. मोहन जो है वो अपनी फैमिली जो है म्यूजिकल फैमिली में ही पैदा हुआ था. ठीक है, म्यूजिक जो है उनकी ब्लड में था, म्यूजिक जो उनके खून में था. वो ही ग्रू अप विथ म्यूजिशियंस लाइक हिज फादर एंड अदर फैमिली मेंबर्स. उनका होता है ना कि वैसा ही पालन पोषण हुआ जैसे कि उनके फादर मदर का एज अ म्यूजिशियन. ठीक है, दे ही ग्रू एज अ म्यूजिशियन. ही वाज इनिशियली ट्रेन्ड इन वोकल म्यूजिक. पहले वो वोकल म्यूजिक मतलब मुंह के द्वारा जो ध्वनि निकलती है उसमें उनको ट्रेन किया गया. देन आफ्टर ही ट्राइड हिज हैंड एट द वायलिन. देन उन्होंने फिर अपना हाथ किस में ट्राई किया, वायलिन में. When he was about 10 he started liking सितार. जब वो 10 साल के हुए तब उनको सितार बहुत पसंद आने लगा. He was also trained in it and played it for about 3 years. उन्होंने वो 3 साल तक बजाया और उनको बहुत मजा आया सितार बजाने में. A German lady come to stay with Mohan's family to learn music from his father. एक जर्मन फैमिली जो है वो जर्मनी से इनके घर पे आए थे इनके फादर से म्यूजिक सीखने के लिए. It was then that the guitar entered in his life. उसके बाद उनके लाइफ में क्या आ गया, गिटार आ गया. He began his experiment with that beautiful instrument. No other instrument now in my life. I want to play the guitar only. तब से उनको गिटार बहुत अच्छा लगने लगा. अब वो कहने लगे कि गिटार के अलावा और कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो बजाएंगे नहीं. ठीक है. Said Mohan to himself, guitar took all his time. वो पूरा दिन क्या करते थे, सिर्फ गिटार प्ले करते रहते थे. He likes to play guitar. The whole day guitar. Ours is a family where sitar, vocals and classical violin are practiced. The guitar does not have the effect which our instruments do and moreover. उनके फैमिली मेंबर ने कहा कि तुम क्या पूरा दिन ही गिटार लेके बैठे रहते हो. हमारी फैमिली में गिटार चलता नहीं है. हमारी एक क्लासिकल फैमिली है, एक शुद्ध क्लासिकल फैमिली है जिसमें सितार और मुख से द्वारा ध्वनि निकलती है, वो करना रहता है. ठीक है, उनसे अपन को हमें गाना गाना रहता है. It's not from India, said one of the family members.
डू यू थिंक योर फादर डज नॉट अप्रूव योर लव फॉर द गिटार, सेड हिज आंटी। अब उन्होंने कहा कि आपको पता है कि ये जो गिटार है अपने इंडिया से नहीं है, इसलिए तुम्हारे पापा जो है वो तुम्हें गिटार बजाने की परमिशन नहीं दे रहे। क्या उन्होंने दी? ऐसा करके उनकी आंटी उनसे पूछ रही है। बट हिज मदर केम टू हेल्प हिम, लेट मी फॉलो हिज हार्ट्स डिजायर, शी प्लेड म्यूजिक ऑन देयर क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट, लेट मी फॉलो हिज हार्ट्स डिजायर, शी डिक्लेयर्ड। उनकी मम्मा ने कहा कि नहीं, इसको जो करना है वो वही करेगा, हम उनको किसी बात पर दबाव डालेंगे नहीं, ठीक है। Then his father started supporting him. Then after धीरे धीरे से जैसे उनकी मम्मी ने स्टार्ट किया सपोर्ट करना, उसके बाद उनके फादर जो है वो भी उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। He was overjoyed and decided to modify this western instrument. वो खुश हो गया, ठीक है, और जो मोहन है वो खुश हो गए और उन्होंने इसको और अच्छी तरीके से प्ले करने का सोचा। He tried to make it suitable for playing pure Indian classical music. He thought कि क्यों ना गिटार से मैं प्योर क्लासिकल म्यूजिक बजाना स्टार्ट करूं। He spent 2 more years with guitar only. उन्होंने और 2 साल सिर्फ गिटार बजाने में यूज कर लिए। तो बच्चों देखो, पहले उनकी मम्मी ने उनको सपोर्ट किया, देन आफ्टर उनके पापा ने उनको सपोर्ट किया, क्योंकि उनमें क्या था, पैशन था, कुछ कर दिखाने का उनमें पैशन था, कुछ जुनून था, ठीक है। दैट्स व्हाई everyone has supported him. One evening there was a gathering of close family members. In this small gathering, Mohan's brother, sister and nephews, who were also performing artists playing music on their classical instrument, there was a great appreciation. Mohan to express his wish to perform, he played on guitar. एक दिन क्या हुआ, शाम को उनके घर पे स्मॉल गेट टुगेदर था, ठीक है। उनके सारे जो क्लोज फ्रेंड्स फैमिली वगैरह है वो सारे आए घर पे, और उन्होंने क्या किया, सबको धीरे धीरे से टर्न दिया गिटार और मतलब उनके जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, उनके जो भाई बहन है मोहन के ब्रदर सिस्टर और उनके नीस नेफ्यू जो भी थे, उनके कजिन्स वगैरह, उन सब ने धीरे धीरे करके अपना क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाया। और मोहन ने कहा कि मुझे भी कुछ बजाना है, ठीक है। मोहन ऑल्सो सेड कि मुझे भी कुछ बजाना है। He played on guitar and what he played, उन्होंने क्या बजाया, गिटार बजाया। After his performance, a relative said, "You need to work very hard with the new instrument." जैसे ही उनका परफॉर्मेंस खत्म हुआ तब उनके एक रिलेटिव ने कहा कि आपको बहुत ही काम करना पड़ेगा आपके न्यू इंस्ट्रूमेंट जो आपके पास है उनसे। If it were the sitar, you would have been in competition with your brother and sister. अगर ये सितार होता तो आप आपके ब्रदर और सिस्टर से क्या कर सकते थे, कंपटीशन कर सकते थे। बट स्टिल दिस इंस्ट्रूमेंट नीड्स मोर, और आपने 2 साल और निकाल दिए और ये इंस्ट्रूमेंट को और कुछ साल आपको लग जाएंगे सीखने में। आफ्टर हिज परफॉर्मेंस समवन सेड, द सितार साउंड इज लाइक अ फ्लोइंग स्ट्रीम, योर इंस्ट्रूमेंट डज नॉट हैव दैट डेप्थ। जो सितार है वो बहते पानी की तरह आवाज करता है, बट ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो वैसा नहीं है। Yet another said, your brother plays the violin, his sur and tal are so beautiful. What are you doing with this instrument? कि आपने ब्रदर ने जो वायलिन बजाया उसमें तो सुर एंड ताल बहुत जोरदार थे, बहुत मस्त थे, आप इस इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या कर रहे हो? Mohan was depressed and cried for the whole night. He had already given 2 years of his life to this instrument. उस दिन मोहन बेचारे बहुत उदास हो गए, वो रोने लगे और उनको सोचने लगे कि मैंने ऑलरेडी 2 साल अपने दिए हुए इस इंस्ट्रूमेंट में और भी और कितने साल देने रहेंगे मुझे। But from the heart I made for guitar. There is no instrument for me but the guitar, he thought. फिर उनके माइंड में एक चीज स्टक हुई, उन्होंने सोचा कि मैं तो गिटार के लिए ही बना हूँ, मेरे को गिटार ही चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए नहीं, मुझे और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए। This instrument will become my face to the world, I am sure. I am going to make it big, very big. He was determined. He thought, उन्होंने क्या सोचा कि एक दिन यही गिटार जो है मैं वर्ल्ड के लिए मैं जाना चाहूंगा इस गिटार की वजह से, ठीक है। और मैं ये दृढ़ निश्चय करता हूं कि मैं ये करके दिखाऊंगा और मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। This experience took place when Mohan was only 16 years of age. जब मोहन 16 साल के थे तब ये एक्सपेरिमेंट उनके साथ हुआ था, तब ये प्रयोग उनके साथ हुआ था। It was the turning point of his life. Mohan doubled his रियाज and practice for about 10 hours a day. उन्होंने अपना रियाज डबल कर दिया, वो दिन में 10 घंटे जो है
रियाज करते थे, प्रैक्टिस करते थे। ही ऑल्सो स्टडीड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द गिटार, उन्होंने गिटार को डिटेलिंग में पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। He decided to incorporate the specialty, technique and sound of every instrument into the guitar. उन्होंने उनको बारीकी से उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनको किस तरीके से बजाना है, क्या करना है, everything he has studied. He wanted to invent something which gave the sound and tone of the western guitar but could be played like an Indian वीणा। उन्होंने ये सोचा कि अब मुझे ऐसा बनाना है कि ये दिख तो गिटार रहा है पर इसका साउंड कैसा है, इंडियन वीणा के जैसा साउंड आया इसका। Not only the sound that my instrument produces is important, but it must also express my vision. ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेरा साउंड ही विजन, मतलब मेरा साउंड ही लोगों को सुनाई दे, बट जो मैं कहना चाहता हूँ वो भी पता चलना चाहिए। मेरा जो थॉट है, मेरा जो विजन है, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, वो म्यूजिक के थ्रू मैं लोगों को बताऊं। What I want to say through the instrument, he said to himself. Finally, with untiring efforts and understanding of ragas, he created the wonderful Mohan वीणा। देन आफ्टर उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत प्रतिज्ञा करी, बहुत टाइम स्पेंड किया, एट लास्ट उन्होंने मोहन वीणा करके एक राग बना ही दिया, ठीक है। टुडे द वर्ल्ड नोन्स मोहन एज पंडित विश्व मोहन भट्ट, विनर ऑफ अ ग्रामी अवार्ड, ग्रामी अवार्ड के विनर हैं और आज उनको मोहन एज अ पंडित विश्व मोहन भट्ट के नाम से जाना जाते हैं। I just followed my heart passion and here I am, said Mohan at the award ceremony in 1993. अवार्ड सेरेमनी में उनको ग्रामी अवार्ड दिया गया था, ठीक है। उन्होंने सिर्फ एक ही वर्ड कहा, उन्होंने एक सेंटेंस सिर्फ कहा कि मेरा ये पैशन था, मेरा ये जुनून था, इसलिए मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। तो बच्चों, आप लोगों को भी आपका जो पैशन है उनको अच्छे से डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ फॉलो करो और लाइफ में वही पैशन अपना प्रूव करके दिखाओ दैट वी आर समथिंग, हम कुछ है और हमने कुछ बन लिया, हम कुछ बन गए हैं। सो ये स्टोरी थी मोहन एंड हिज वीणा की। आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। बाय बाय, टेक केयर।